हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेक्शन में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा था और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशंस पढ़े थे। प्लांट्स में किस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशंस होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स में क्या होता है कि पॉलिनेशन दो टाइप के एजेंट्स के माध्यम से होता है। इट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the flower through two kind of medium. So this pollination is achieved either by abiotic pollinator, means non-living, or by biotic. सो पॉलिनेशन के एजेंट्स हैं वो दो तरह के हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक पॉलिनेटर्स में फर्दर दो टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, आइदर ट्रांसफर ऑफ pollen grain बाय विंड, या तो विंड से ट्रांसफर होता है, अनदर वन इज बाय वाटर। When pollen grain is transferred from anther to stigma of flower by wind, then it is called as anemophily. It's called as anemophily. So anemophily का मतलब क्या है? The pollination by wind. Wind pollination is known as anemophily. The pollination by water is known as hydrophily. वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है एबायोटिक कंपोनेंट में, वो विंड पॉलिनेशन होता है, ये ध्यान रखें। मेजॉरिटी, ज्यादातर प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होता है। इन सम प्लांट देयर इज वाटर पॉलिनेशन आल्सो एग्जिस्ट्स। अब बायोटिक में कई तरह के बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, pollination by insects is known as entomophily. Entomotom is used for insect. So transfer of the pollen grain by insects is known as entomophily. If the pollination is by birds, then it is called as ornithophily. Ornithotom is used for bird, so this is pollination by birds. If the pollination is by bats, then it is called as chiroaerophily. This is by bats. Bats से pollination होता है। In few plant, there is maybe the pollination by ants and termites. That pollination is called as myrmecophily. This is pollination by ants and termites. Okay, ये भी pollination करते हैं। So there are the two kind of agents of pollination: abiotic agents and biotic agents. Abiotic agent, wind and water. Pollination by wind is known as anemophily. It occurs in the majority of plants which are pollinated by abiotic agents. By water, this is called as hydrophily. Few biotic pollinating agents are insects. Pollination by insect is known as
entomophily. Pollination by birds is known as ornithophily. Pollination by bats is known as chioterophily, and by ants and termites is known as myrmecophily. So these are the agents of pollination. ये हमने different agents important है, पूछे जाते हैं, टर्म्स पूछी जाती हैं. These are the important terms, है ना. हाइड्रोफिली क्या होता है, एनिमोफिली क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, नीट वगैरह में ये क्वेश्चंस रहते हैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट. ओके, अब देखते हैं कि ये मेनली 3 कैटेगरीज में हो गया. पॉलिनेशन बाय विंड, वाटर. बायोटिक कंपोनेंट में भी मेजॉरिटी जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है. तो इनके जो फ्लावर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दैट वी विल डिस्कस हियर. सो the first is the pollination by wind. In a wind pollinated flower, the pollen grains are light, हल्के होते हैं ताकि हवा के साथ आसानी से उड़ जाएं. So these are light, non sticky, surface से stick नहीं हो. Winged होते हैं जिससे हवा के साथ आसानी से travel हो जाएं. So these are the characteristic of pollen grain. So pollen grain कैसे होंगे, light होंगे, non sticky होंगे, winged होंगे. किसमें, wind pollinated flowers में. इनका एंथर जो होगा वो well exposed होता है. The characteristic of anther is it is well exposed. जैसे ही हवा आई उसके साथ pollen grain उड़ना शुरू कर दें, इसलिए ये well exposed होते हैं. अब इनमें क्या होता है, स्टिग्मा बड़ा चाहिए क्योंकि pollen grain इसमें लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं. That we will talk later also. क्योंकि पॉलन ग्रेन का लॉस इसमें ज्यादा होता है. इसकी कोई डायरेक्शन का, तो हवा की डायरेक्शन का किसको पता, किधर से हवा जाने वाली, तो फीमेल फ्लावर या स्टिग्मा कहाँ है वो पता नहीं होता. तो पॉलन ग्रेन के लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं. दैट्स व्हाई दिस हैव लार्ज स्टिग्मा. और फिद्री होते हैं. उनका जो स्टिग्मा होता है वो लार्ज और फिद्री होता है. हेयरी हो सकता है, बुशी हो सकता है, म्यूसिलेजिनस हो सकता है, स्टिकी हो सकता है. These are the characteristic of the stigma of a wind pollinated flower. फ्लावर में जनरली क्या होगा, सिंगल ओव्यूल होता है, बट फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोरेसेंस. बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ प्रेजेंट होंगे, ऐसा विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में होता है. Few examples wind pollinated flowers के corncob, cotton, date palm. These are the examples of the plants in which the pollination is achieved by wind pollination. Wind से achieved होता है. Okay, so what are the characteristics here? Pollen grain light, non-sticky and winged. Anther well exposed. Stigma large and fibrous. Flower one ovule arranged as inflorescence. Corncob, cotton and date palm. These are the example of this wind pollinated flower. Let's see here. This is a flower, wind pollinated flower का एक example है, जहाँ पे पूरा inflorescence है, बहुत सारे flowers हैं, well exposed. इसमें anther है, pollen grain इसमें light, pollen grain present हैं जो wind से इसमें ट्रांसमिट हो जाए. अब इसमें एक खास बात क्या होगी कि wind pollinated जो flowers होंगे वो कलरफुल नहीं होते हैं ना, और न ही उनमें फ्रेग्रेंस होती है. So these anemophilous flower are neither attractive, कलर वगैरह नहीं है जैसा इसमें देख रहे हैं आप, न तो अट्रैक्टिव होते हैं, एंड नॉर विद फ्रेग्रेंस, नॉर विद फ्रेग्रेंस. इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती. ठीक है. So ये और जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, मेजॉरिटी ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशन जो है वो विंड से होता है. ज्यादातर केसेस में विंड से पॉलिनेशन होता है. एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप याद रखेंगे,
आपने वर्ड सुना होगा सल्फर शॉर। सल्फर सार क्या होता है? पाइनस ट्री में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स येलो कलर होते हैं, सो येलो क्लाउड जैसा अपीयर होता है जब पोलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं। सो दिस इज येलो clouds are formed in pinus tree. Which tree? Pinus tree. Pinus tree में yellow clouds formation हो जाते हैं. These are due to pollen grain. हवा में जब pollen grains होते हैं उनसे ये बनता है, large amount में pollen grain produce होते हैं. So ये तो रही बात wind pollinated flower के characteristics की. वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? देखिए, वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स में वाटर पॉलिनेशन जनरली लोअर प्लांट्स में तो होता है सभी में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, द ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स इज बाय वाटर, वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं. हियर द पोलन ग्रेन्स जो एंजियोस्पर्म्स होंगे उसमें पोलन ग्रेन्स हैव म्यूसिलेजिनस कवरिंग. म्यूसिलेजिनस मींस वैक्सी कवरिंग होती है इसमें, दे हैव वैक्सी कवरिंग. इसका फंक्शन होता है वाटर से पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करना. दैट इज द रोल ऑफ दिस. एग्जांपल फ्रेश वाटर प्लांट्स में वेलेस्नेरिया एग्जांपल, हाइड्रा इज एग्जांपल, सी ग्रास में जैसे जोस्टेरा इज एग्जांपल. अब एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड में दोनों होगा, क्योंकि दोनों में पोलन ग्रेन्स लॉस होते हैं. इन बोथ दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन and then do not produce nectar. Nectar produce नहीं करते हैं. ओके, यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली डिस्कस करेंगे. हाइड्रोफिली जो है वाटर से जो पॉलिनेशन है दैट इज ऑफ टू काइंड, दो तरह का होता है. एपीहाइड्रोफिली यानी कि वाटर की सरफेस पर pollen release होते हैं, that is called as EP. When pollen takes place on the surface of water, Vallisneria is example है, ये epiphily condition का example है. And another one is another example is hypohydrophily. EP and hypohydrophily. So here pollen grains are released inside water. Example is sea grass, जोस्टेरा इसका example है. Okay, hydrilla में भी ऐसा होता है, हाइड्रोफिली होती है. Another example is hydrilla. So these are the characteristics of wind pollinated the flower. Pollen grains are protected by mucilaginous covering. Pollen grains are produced in large number. The flowers do not produce nectar. There are two kinds of water pollination. Epihydrophily means the pollination occurs on the surface of water. If it occurs inside water, then it is called as hypohydrophily. Okay. तीसरा जो है वो मेजॉरिटी टाइप का जो पॉलिनेशन है दैट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन. इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? दिस कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड दिस फ्लावर्स आर जनरली लार्ज, कलरफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं बिकॉज दे नीड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं कलरफुल. क्यों? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है. फ्रेग्रेंट, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, अच्छी फ्रेग्रेंस होती है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. जो भी बायोटिक कंपोनेंट है इज अ रिच इन नेक्टर. नेक्टर इज अ रिवार्ड फॉर इंसेक्ट, ताकि इंसेक्ट आए और पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करे, तो उसके लिए रिवार्ड है ये प्लांट की ओर से. इनके जो पोलन ग्रेन है वो स्टिकी होते हैं. दे स्टिक टू द when an insect visit a particular flower, the pollen grain stick to the insect and then it is carried by the same insect to stigma of another flower.
So यहाँ पे स्टिग्मा भी स्टिकी होता है और पॉलन ग्रेन्स भी स्टिकी होते हैं। पॉलिनेटर्स के लिए कुछ रिवार्ड्स प्लांट प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड नेक्टर दैट इज एज ए फूड, कुछ एडिबल पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं, एंड इट आल्सो प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग फॉर फ्यू इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स के लिए ये सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करता है। Amorphophallus and Yucca are the example of insect pollinated flowers. So these are the characteristic of these are the different agent of pollination.